नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एक्साइटिंग पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो हर घर और फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर पॉल्यूशन। क्या आप जानते हैं कि पॉल्यूटेड एयर अस्थमा और दूसरी बीमारियों का कारण बन सकती हैं? और आपके घर के एसी जो हमें ठंडी हवा देती है, एक्चुअली एयर को प्यूरीफाई नहीं करते, बल्कि पॉल्यूटेड एयर को वापस सर्कुलेट करते हैं। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं रवि कौशिक जी, जो अर्थ के फाउंडर हैं। अर्थ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके एसी को एक पावरफुल एयर प्यूरीफायर में बदल देती है, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के। रवि जी ने अपने इनोवेटिव आइडिया के साथ शार्क टैंक इंडिया सीजन 4 में सबका दिल जीता और 1 करोड़ की फंडिंग रेज की अमन गुप्ता और विनीता सिंह से, जो इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स हैं। आज के एपिसोड में हम उनकी जर्नी, अर्थ के टेक्नोलॉजी और शार्क टैंक के एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के लिए चलिए शुरू करते हैं। Awesome. Firstly, thanks for coming, Ravi. Thanks for giving your time. Welcome to the Campus Code podcast. Thank you very much. Yeah, so firstly, congratulations on being featured on Shark Tank India season 4. So we would like to know the backstory, like idea कहाँ से आया? Okay. How Uh, did the start connected? Problem कहाँ से दिखी? फिर solution कहाँ से आया? And how did you execute it? right. So yeah, it's a long story, but I'll keep it short. Born and brought up in Delhi, the hub of pollution, and then my grandmother was severely asthmatic, and my grandfather also was severely asthmatic, and he passed away because of asthma when my father was 5. So kind of seen how asthma can change lives. At least for my family, it changed a lot. And then uh, I've also seen, for example, cousins in my family or some friends using those inhalers and having them in their pocket even when they're inside home. So Yeah. that kind of severity triggers from asthma can have, and that's why I thought, okay, air still remains something that people are unable to solve, and only known solution is air purifier, which people usually forget to turn on. Mhm. uh, Decided I'll study aerosol science. I'll Mm. study the subject. 2017 to 2019, I was at IIT Bombay, uh, and doing specialization in aerosol science. Did a lot of research and development on all types of air pollution technologies out there, and then didn't sit for placements. I applied for a fellowship. I got that fellowship. 8 people were selected throughout India. I was one of those fortunate ones. And then, because of the work that I was doing, I was the only one who got extension to that fellowship. So, EIR, Entrepreneur in Residence, kind of a dream job for any wannabe entrepreneur, where you don't have to report to anybody. You can work on whatever you want to. You will get monthly salary, plus grants, etc. So there are a lot of such programs now. Mhm. Fortunately, I got into it and kept working on air as a subject. That's where I also got industrial experience. Apart from a lot of lab experience, I got industrial experience. Also at IIT Bombay, I did minor in entrepreneurship. So there were like coursework where you'll get credits for those courses. So I did one course for credit, and then all of them just I sat in the classrooms. So for example, for marketing, for introduction to entrepreneurship, then how you make prototypes, and then IP, intellectual property, so all of that. And then there are a lot of networking opportunities, a lot of competitions that I applied in, and that's how I got hold of entrepreneurship, because of appreciation that I got from my faculty, from my teammates, from my batchmates. I then realized, okay, maybe I can pursue it. I'm okay at doing it, and that's how I made a career choice, not to do anything else. Otherwise, I thought maybe I'll be mostly into research and development. But at the end of the day, you can't know what you are good at unless you try it. So I explored entrepreneurship, figured out, okay, I can do it, and that's how the journey started. And Earth in 2020 was born, and first started working on antimicrobial air purifier, a technology developed at IIT Bombay. Me and other two professors were the innovators in that. IIT Bombay was the owner of the patent, and then we did testing on SARS-CoV-2, first startup
that has done testing on live COVID virus, not a surrogate species, did testing on black fungus, drug-resistant microbes, and we were able to sell to HQ of RBI, ONGC, Stockholding Corporation of India, but never saw that hockey stick curve. That's where we ultimately realized, okay, the problem is with uh, getting into people's habit. Air Hmm. purifier as an industry is not growing at the growth rate that everybody anticipated, that is 30% CAGR. अभी भी Hmm. सिर्फ 3 से 5 लाख यूनिट्स ऑफ एयर प्यूरिफायर्स आर बीइंग सोल्ड. However, Yeah. more than 1 crore ACs are sold in India every year, and this year that number might rise to 50 to 100%. So Hmm. just see the scale where we are. So ultimately, you have to understand, for Indians, we seek value for money. Yeah. If we are not using something, out of 12 months, you hardly use your air purifier for three, Hmm. you are not going to value it. And that's what we ultimately figured out after spending a lot of money, time, resources Hmm. on it. And then we pivoted, saying, okay, at the end of the day, air purifier is a body that has a fan and a filter. Your AC Hmm. also has a body that Hmm. has a fan, filter, and cooling coil that does all the cooling or heating. But the AC filter is worthless. What if we can upgrade AC? So that's how our journey started. Nobody believed us even that time, but now we have upgraded more than 30,000 ACs across India. Yeah. So can you tell us about little, अब तो शायद hot and cold ACs भी आ गए हैं. Uh-huh. A Right. little your research about AC, like why AC? It राइट. could. सो अभी कमिंग टू योर क्वेश्चन, व्हाई एसीज, हमको Hmm. वही समझ में आया कि यार, लोग खरीदते हैं एयर प्योरीफायर फॉर देयर किड्स और ग्रोइंग ओल्ड पेरेंट्स. बोथ Hmm. ऑफ दीज एज ग्रुप्स नेवर टर्न एयर प्योरीफायर ऑन बिकॉज उनको पता ही नहीं है एयर क्या होता है. सो Hmm. जब पता ही नहीं है आपको कि एयर क्या होता है, एयर से क्या हार्म हो सकता है, क्या इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं, सो यू टेंड टू इग्नोर इट. एंड एक बार अगर एयर प्योरीफायर बंद हो जाता है, वो अगले साल फिर चलता है नवंबर में, Hmm. राइट, जब पूरे मीडिया हाउसेस वगैरह बोल रहे होते हैं देखो एयर क्वालिटी इतनी खराब है. Hmm. तो आ, ये दोनों एज ग्रुप्स, Hmm. पेरेंट्स एंड किड्स, Hmm. जरूर एसी चलाना आता है उनको कि एसी Hmm. कैसे चलता है. सो Hmm. दैट्स वेयर, एंड एज आई सेड, टेक्निकली ऑल्सो द क्लोजेस्ट वुड बी एयर प्यूरिफायर का, वुड बी एसी. एसी काम, तो एयर प्यूरिफायर जो होता है ना, उसमें छोटी सी मोटर होती है, Hmm. एसी के अंदर बड़ी मोटर होती है. तो Hmm. एसी इनहेरेंटली इज थ्रोइंग मोर एयर देन Hmm. स्मॉल एयर प्यूरीफायर. एयर प्यूरीफायर काम करता है 200 से 300 मीटर क्यूब पर आवर पे. Hmm. एसी काम करता है 700 से 900 मीटर क्यूब पर आवर पे, ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना एयर Hmm. फ्लो, एयर फेंकता है मतलब वो. हाँ. अ, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. बट देन जो मार्केट में अवेलेबल चीज़ें थी, हमने वो ट्राई करी. हमने क्योंकि एक कोटिंग डेवलप कर ली थी बाय दैट टाइम विद आईआईसी बैंगलोर, और हमने बोला कि यार, जो फिल्टर है ऑलरेडी, एसी फिल्टर मार्केट में, उन पे कोटिंग कर देंगे, एंड देन कोटिंग की वजह से वी विल चार्ज एक्स्ट्रा, एंड विल डू द बिजनेस. तो वैसे Hmm. करके स्टार्ट किया था. एंड देन वी टेस्टेड इट फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ और सो. फाइनली फिगर्ड आउट, रियल लाइफ में उसकी Hmm. वैल्यू आती नहीं है. Hmm. मतलब आप घर में अगर लगाओगे, लैब में देखो, कोई भी कैसी भी टेस्टिंग कर सकता है. Hmm. इफ दे आर गुड, दे नो द साइंस ऑफ इट, राइट. तो छोटे से रूम में छोटा सा टेस्ट करके, एंड देन यू कैन से कि 90% रिडक्शन. 3M के भी फिल्टर्स आप देखेंगे, तो 3M के फिल्टर देखेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि वो लोग बोलते हैं 90% रिडक्शन. अभी 3M निकाल रहा है अपने Hmm. एसी फिल्टर्स, ज़्यादा अभी एडवर्टाइज वगैरह भी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक हम थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंसिवली वी आर सेइंग कि दे आर वर्थलेस. Hmm. सो वो हमने किया, फिर समझ में आया कि यार, बेस्ट 3M जैसी बड़ी कंपनी, और जो Hmm. एसी कंपनीज हैं जो वो बोलती हैं कि हम पीएम फिल्टर देते हैं, तो उनको Hmm. हमने टेस्ट किया. दोनों में Hmm. से कोई काम ही नहीं करता है. अगर बाहर का पोल्यूशन इज, लेट से 200, अंदर भी 200 ही होगा, तो Hmm. कोई फर्क नहीं. और उसको आप अभी चलाओ, 1 घंटा रुको, 3 घंटा रुको, या 5 घंटा रुको, वो पॉल्यूशन लेवल जितना बाहर गया ऑलमोस्ट उतना ही आएगा. वो Hmm. बढ़ेगा भी, कम भी होगा, बिकॉज ऑफ बाहर, नॉट बिकॉज ऑफ ये कुछ कर रहा है, ये फिल्टर कुछ कर रहा है. तो अगेन, बिकॉज ऑफ a lot of domain knowledge that we had, we were Hmm. able to make something. क्योंकि अगर आप एसी को पढ़ेंगे, समझेंगे और अच्छे से, तो हम फिर से ड्राइंग बोर्ड पे गए कि यार, कोई चीज़ तो चलती नहीं, अभी क्या करें. तो Hmm. एसी को समझा हमने पहले. Hmm. तो जो स्प्लिट एसी होता है ना, जो टॉप पार्ट होता है, वहां से Hmm. अंदर हवा जाती है,
और हुँ, फ्लैप जो होता है उससे बाहर निकलते हैं, तो लोगों को लगता था कि वो जो खाली पाइप जा रही है उससे हवा आती है बाहर से, जबकि हुँ, ऐसा नहीं होता है। हुँ, 0% हवा बाहर से आती है, कुछ भी हुँ, बाहर से नहीं आता, बस वो जो काली पाइप जा रही होती है दैट इज फॉर गैस हुँ, हीट एक्सचेंज के लिए, जो होती है कि बाहर गर्मी निकले, अंदर ठंडा, वो कूलिंग कॉइल में ठंडा हो जाए। सो दैट इज द ओनली यूज केस फॉर दैट ब्लैक वायर। हुँ, और आपकी हवा घूमती रहती है, हुँ, हवा कमरे के अंदर घूमती रहती है। हुँ, तो हुँ, जो टॉप पार्ट है, हमने अपना हुँ, माइंडसेट फिर चेंज किया कि ये हुँ, टॉप पार्ट जो है इसको इनलेट की तरह ना कंसिडर करके, कैन वी कंसिडर दैट एज अ प्लेटफॉर्म where we हुँ, can build something. So हुँ, we were able to build and this AC air purifier on top of your AC, which हुँ। sits like a crown and upgrades your AC, and that's how you get clean air at super affordable cost. मतलब आपने क्या किया कि एसी जितने भी एयर को इंटेक करता है, वो इंटेक के टाइम पे उसको प्यूरीफाई कर दिया। Correct, correct. अब डोंट यू थिंक कि ये चीज़ एसी के अंदर ही हो सकती है या इन अभी नहीं हो रही तो इन फ्यूचर हो जाएगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगेन रीजन बीइंग क्योंकि एसी ऑलरेडी बहुत सालों से चल रहा है, राइट। जब से वो मार्केट एस्टैब्लिश हुई है, और अभी ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन सिर्फ स्प्लिट एसीज हैं, हुँ, ऑलमोस्ट 2.3 बिलियन सारे एसीज मिला के हुँ, हैं, हुँ, 230 करोड़ एसीज, राइट। तो हुँ, जितना ऑप्टिमाइजेशन होना था ऑलमोस्ट उसमें हो चुका है, थोड़ा बहुत इधर उधर आगे पीछे ले आते हैं। अभी जैसे वाटर प्योरीफायर में भी क्या होता है कि कोई हुँ, बस यूँ बोल देता है कि कॉपर है इसमें, कोई कुछ बोल देता है, चलता बेसिक उसी पे ही है। सो वो एसी के अंदर भी वही है कि चलता वो बेसिकली सेम चीज़ पर ही है। हुँ, ऑप्टिमाइज़ेशन फुल हो चुका है इस मार्केट के अंदर, क्योंकि हुँ, इतना बड़ा मार्केट है। तो अंदर कुछ भी लगाना इज़ डेफिनिटली नॉट अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज़ ऑलरेडी सब कुछ बहुत छोटा-छोटा कर चुके हैं, स्पेस कंस्ट्रेंट जितना छोटा बना सकते थे बना दिया है। हुँ, ऑल्सो इट इज़ नॉट गुड अगर आप अंदर लगा देंगे, क्योंकि अंदर लगा देंगे तो कैसे पता किसी भी यूज़र को कि अच्छा ये साफ हवा दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो हमारे हुँ, लिए गलती से एडवांटेज ये भी हो गया, क्योंकि आप एसी के ऊपर रखते हो, तो हुँ, एक डिस्टिंग्विश फैक्टर आ जाता है कि इसके ऊपर कुछ रखा हुआ है। तो वो जो हुँ, रखा हुआ है उसी से साफ हवा आती है, ये आपको समझना पड़ेगा, और ये एज़ अ कंज्यूमर बिहेवियर में भी बेटर जाएगा। हम हुँ, अभी काफ़ी बड़ी-बड़ी एसी कंपनीज़ के साथ भी हैं टच में, इवन हुँ, दे लाइक द फैक्ट कि अच्छा है कि आपका ये बाहर है, क्योंकि हुँ, तभी तो लोगों को पता लगेगा अच्छा कुछ अलग है इसके अंदर। हुँ, बिल्कुल। तो और चलते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन था कि आगे आने वाले टाइम में कोई एसी कंपनी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। वोल्टास का आप देखिए, हुँ, प्योर एयर करके है, हुँ, उसके अंदर HEPA फिल्टर है, लेकिन हुँ, प्रॉब्लम ये है कि वो इतना ज़्यादा महंगा है कि आप हुँ, उसको लेंगे नहीं। तो अगर मैं मयंक आपसे पूछूं कि क्या हुँ, आप 1 टन का एसी जो 30,000 का आता है, क्या आप हुँ, उसको 12,000 रुपये, 42,000 रुपीज में परचेज करोगे, क्योंकि उसके अंदर फिल्टर लगे हुए हैं, HEPA फिल्टर लगे हुए हैं। हुँ, नहीं, ज़्यादा हो तो जाएगा। यूजुअली 12,000 रुपये। सो लोग इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट चलता है यार कि मेरा मतलब सिर्फ फिल्टर के लिए, फिल्टर तो मैं अगर एयर प्योरीफायर का फिल्टर आता है वो 3,000 से 5,000 रुपये के बीच में आता है, तो हुँ, वो हमारे दिमाग में एक कॉस्ट बेंचमार्क बना हुआ है, उससे ज्यादा कोई नहीं देगा। हुँ, लेकिन हुँ, ऐसा कोई भी ऐसी कंपनी कर नहीं सकती, क्योंकि 5,000 से ज्यादा का तो आप डिस्काउंट इधर उधर करते हो हुँ, जब एसी हुँ, खरीदने जाते हो, राइट। तो ओनली ऑप्शन देन लेफ्ट इज कि आप किस तरह से रेट्रोफिट कर सकते हो। हुँ। रेट्रोफिट में हमारा ही ऑप्शन है, फॉर विच वी हैव फाइल्ड फॉर पेटेंट। या अब अगर आपकी बात करें थोड़ी-सी बैकग्राउंड की, एक तो आप थोड़ा-सा फेलोशिप के बारे में बताएँगे कि एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट जब हुई तो आपने कहा था कि फेलोशिप में आप प्ले किया, तो उसके बारे में थोड़ा-सा ज़्यादा बताएँगे? श्योर। तो उससे भी पहले मतलब जैसे मैंने माइनर किया था ना एंटरप्रेन्योरशिप में, वहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि कोर्स वर्क कर रहा था मैं, तो हुँ, वहां पर पढ़ाया जाता था कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, हुँ, मार्केटिंग होता क्या है, कस्टमर इंटरेक्शन होता क्या है, बिजनेस मॉडल कैनवास क्या होता है, प्रोडक्ट वैल्यू प्रोपोजिशंस क्या होते हैं, प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है, हुँ, प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट क्या होता है। तो ये सब चीजें आपको बताई जाती हैं। बिजनेस हुँ, मॉडल कैनवास आपको बार बार बनाया जाता है, फाइनेंशियल मॉडल्स आपसे बार बार बनवाए जाते हैं, जहां पर आप पूरा फाइनेंशियली यू हेल्प अस कि एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, सब चीजें आपको डिफाइन करनी होती है। तो ये सब चीजें का ऑन हैंड एक्सपीरियंस लेना वो बहुत क्रिटिकल था। तो वहां से एक छोटे से प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट हुआ था, हुँ, एंड देन उसके बाद धीरे धीरे करके चीज़ें बेटर हुई। नेटवर्किंग इवेंट्स होते थे आईटी के अंदर, तो वहाँ मैं जाता था।
वहाँ पे हुँ, और एंटरप्रेन्योर्स आते थे, अपनी जर्नी के बारे में बताते थे, मैं उनसे इंटरैक्ट करता था। बल्कि मेरे जो दूसरे डायरेक्टर हैं अनुज शर्मा, हुँ, उनको मैं आईआईटी बॉम्बे में मिला था, ही केम एज अ स्पीकर देयर। और हुँ, मैं आपको देखिए एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू ग्रैब ऑल द अपॉर्चुनिटीज, तो वो वहाँ आए थे। तो आफ्टर दैट सेशन मैं उनके पास गया, भागा भागा, मैंने बोला सर मैं ऐसा ऐसा कुछ कर रहा हूँ एयर के ऊपर, हुँ, एंड आपने बहुत अच्छा सेशन दिया, कैन यू हुँ, प्लीज हेल्प मी इन सम वे बिकॉज आई हैव नो आइडिया कि कैसे होता है क्या होता है। एंड द हुँ, फर्स्ट थिंग ही सेड वाज कि स्टार्ट कब कर रहा है। हुँ, तो देन आई रियलाइज्ड ओके यार, कि हाँ सही बात है, स्टार्ट कब कर रहा हूँ, मतलब एक्चुअली मैं कंपनी कब स्टार्ट कर रहा हूँ, मे बी आई कैन डू दैट, फर्स्ट टाइम एनीबडी सेड दैट। हुँ, So that's how I got my director, just reaching out to him हुँ, with no past acquaintance at all, or हुँ, any reference at all. So इस तरह से वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी, एंड देन बिकॉज मैंने इतना सब कर लिया था, फिर मैंने जब उसके लिए फेलोशिप के लिए अप्लाई किया तो उसमें एप्लीकेशन हुई, फिर 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू हुए, फिर फाइनली जो उस ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ थे उनके साथ इंटरव्यू था। तो हुँ, पूरा मैंने जब अपनी जर्नी बताई कि ये कर चुका हूँ, मैं ये कर चुका हूँ, आई हैव स्पेंट आवर्स एंड आवर्स just doing experiments, and then I have also spent a lot of time working on the basics of entrepreneurship. तो उनको समझ में आया कि यार इतना काम कर रखा है इसने ऑलरेडी, so that's why I was selected. And that was, otherwise I had to do a job. It was pretty simple. At the end of the day, there are some uh, you have responsibilities, right? हुँ, Towards your family. हुँ, Everyone has. So अगर वो नहीं होता तो मेरे को जॉब करना पड़ता, जॉब करना होता तो आई एम श्योर एवरीथिंग वुड हैव डिलेड बाय अ मच मच लॉन्गर टाइम। हुँ। नहीं, मैं जानना चाह रहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप की फेलोशिप होती है जो एंटरप्रेन्योरशिप में हेल्प करती हैं, आपको मेंटरशिप देती हैं या फंडिंग देती हैं? हाँ, हाँ, इसके बारे ऐसी काफ़ी सारी हैं। आप सबसे ईज़ी रहता है कि आप जिस भी कॉलेज में, आजकल सभी कॉलेजेस में इन्क्यूबेटर्स आ गए हैं। तो आप में? उन इन्क्यूबेटर्स में जाइए, वहाँ पर लोग होते हैं, वो आपको वही बताते हैं कि क्या-क्या फेलोशिप्स वग़ैरह अवेलेबल हैं अभी। गवर्नमेंट ज़्यादातर देती है, हुँ, तो ईआईआर फेलोशिप है जैसे, बाय डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही देती है। हुँ, निधि प्रयास फेलोशिप करके ऐसा कुछ है। हुँ, तो बायरैक के थ्रू आता है, बीआईजी है, सो बहुत सारे स्कीम्स निकलते रहते हैं। हुँ, सबसे बेस्ट रहेगा कि जो भी आसपास वाला इंक्यूबेटर है, उन हुँ, वहाँ इंक्यूबेटर, कॉलेज के अंदर इंक्यूबेटर होता है, उसके अंदर जाइए, वहाँ पे हुँ, बात कीजिए कि मेरे को ऐसे ऐसे करना है, आई एम वेरी न्यू टू दिस, एंड जाके आप पता कीजिए, वो आपको पूरा स्ट्रक्चर बताते हैं कि अच्छा ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो। सो दे आर वेरी गुड पीपल, एंड उनका काम ही यही है कि आपको हेल्प करना। तो आप प्लीज उनसे के पास जाइए, बात कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए, एंड आई एम श्योर यू लर्न अ लॉट। अब अगर आपके बैकग्राउंड की बात करें थोड़ी-सी कि तो आपने एनआईटी कुरुक्षेत्र से अपनी बैचलर्स डिग्री की, राइट? करेक्ट। कैन यू टेल अस अबाउट कि उस टाइम आपका था कि एंटरप्रेन्योरशिप करनी है या ये नहीं, सिर्फ जॉब? नहीं, नहीं, नहीं था। सो उस टाइम भी नहीं था। हुँ, आई वाज़ मोर इंटू डांस, वहाँ पे मैं डांस टीम में था, एंड हुँ, दैट्स वेयर आई मेट माय देन गर्लफ्रेंड, नाउ वाइफ। हुँ, सो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड देयर एट एनआईटी कुरुक्षेत्र, एंड मेरे पॉइंटर भी काफ़ी कम था, ओवरऑल सीजीपीए, हुँ, बिकॉज़ पढ़ लिया था यार मैंने 12th तक, काफ़ी, मतलब उससे ज़्यादा क्या ही करना है, राइट? सो कॉलेज में फर्स्ट 2 इयर्स तो आई डोंट थिंक एनीबॉडी शुड स्टडी। यू शुड एक्सप्लोर, एक्सप्लोर वट एवर यू वांट टू। आपको डांस करना है, ड्रामा करना है, म्यूजिक में जाना है, एथलेटिक्स में जाना है, स्पोर्ट्स, एनी स्पोर्ट्स, राइट? डू वट एवर यू वांट टू, एंड देन डेफिनेटली आफ्टर लाइक मिड ऑफ थर्ड ईयर यू बिकम सीरियस कि क्या करना है अब लाइफ में, यू गेट एम्पल टाइम आई बिलीव। सो उसके बाद आई अपीयर्ड इन द प्लेसमेंट्स, हुँ, जो पहली 5 कंपनीज थी, तो हुँ, सब वो रिटन एग्जाम लेती थी, फिर ऑलमोस्ट मेरा सब में ही हो गया था, शायद टॉप जो पहली 5 कंपनीज आई थी, हुँ, और ऑलमोस्ट उसमें 30 कैंडिडेट सेलेक्ट होते थे, तो हुँ, उसके अंदर मेरा आ जाता था नंबर, एटलीस्ट टॉप 5 में तो आया था। फिर हुँ, उसके बाद मैं जाता था इंटरव्यू के लिए, तो हुँ, वहां पर मेरा सीजीपीए बिकेम अ मेजर इशू।
कि इतना Yes. कम सीजीपीए, सो आई थिंक पीपल थॉट कि मैं चीटिंग करके आया हूँ वहाँ पर, आई डोंट नो। Mm, बट मैं नहीं कर पा रहा था वो इंटरव्यूज क्लियर, तो मुझे लगा यार या तो मुझ में कुछ कमी है, या मैं कुछ समझा नहीं पाता हूँ, या सामने mm, वाले में कुछ कमी है, कुछ तो दिक्कत है विच आई एम अनएबल टू एक्सप्रेस माई mm, सेल्फ मे बी। देन आई डेंट सिट फॉर प्लेसमेंट्स। तब मैंने सोचा कि 1 साल का गैप लूंगा, तो उस टाइम पे माय फैमिली वाज लाइक कि गवर्नमेंट जॉब कर ले, गवर्नमेंट जॉब कर ले, सिविल इंजीनियरिंग है, एनवायरनमेंट मेजर है, तो कर सकता है, गवर्नमेंट बहुत इजीली मिल जाएगा। mm, बट गवर्नमेंट में यस आई डिड प्रिपेयर, आई गॉट ऑलमोस्ट 300 रैंक ऑल इंडिया इन गेट। तो बट अगेन आई वाज नॉट दैट इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट एज टाइम पास, बिकॉज मेरे सीनियर्स वगैरह जो थे, मेरे को समझ में आया कि द जॉब इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी वेरी बोरिंग। mm, So that's why I was like कि नहीं यार ये नहीं करना, and then let me go to the best institute in India, which which can help me understand the environmental problems better. So mm, IIT Bombay was the best. I got the admission and went there and mm, studied environmental engineering and majored in aerosol science. So mm. वैसे करके the entire journey started, but definitely एनआईटी कुरुक्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं था कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूंगा। By the way, I am from Kurukshetra. अच्छा, ओके, नाइस। या सो अब आप एंटरप्रेन्योर बन चुके हो। आई हम्म। वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क इज कि अगर कोई बच्चा 9th या 10th क्लास में है, डू यू हाँ, रिकमेंड preparing फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन या जेईई? या या प्लीज डू। द काइंड, लुक एट द एंड ऑफ द डे, इट्स ऑल अबाउट कंपटीशन। आप कहीं भी चले जाए, अभी जैसे हम शार्क टैंक पे आए तो वहां भी कंपटीशन है यार। वहां हुँ, पे 200, मतलब बहुत बहुत सारे अप्लाई करते हैं, उनमें हुँ, से 200 आते हैं। हुँ, 200 में से 150 स्टार्टअप्स को एयर किया जाता है। 150 स्टार्टअप्स में भी हर हुँ, एक दिन 3 हुँ, स्टार्टअप्स आते हैं, तो हुँ, 50 एपिसोड्स, हर हुँ, दिन तीन 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 हुँ, स्टार्टअप्स। हुँ, और 150 में से कुछ 10-20 ही अलग से निकल के आते हैं स्टार्टअप्स। हाँ, तो अब उसमें फाइट होती है कि कौन होंगे वो 10-20 जो अलग से निकल के आएंगे, राइट? तो हुँ, हर जगह पे ही फाइट है, तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ आई थिंक, एंड वी शुड एम्ब्रेस इट रेदर देन। आपको जिगरा चाहिए यार, मतलब तो वो जिगरा आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी आता है। तो फॉर हुँ, एग्जाम्पल एनआईटी में मैं जैसे बोल रहा हूँ कि मैं नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं एक रात पहले जाऊंगा, मेरा दोस्त है हुँ, और भी लोग थे जो हुँ, कि मेरे को पढ़ा देगा, और मैं एग्जाम क्लियर तो कर दूंगा कम से कम। सो वो हुँ, मैंने किया, मेरी एक भी सप्ली नहीं आई थी, कोई हुँ, भी बैक नहीं थी मेरी। हुँ। सो तो कॉन्फिडेंस भी आता है उससे आपको। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स इन शार्क टैंक में भी, और अगर हम रितेश अग्रवाल जी की स्टोरी देखें, या आई इंटरव्यूड फाउंडर ऑफ निक्सेरा, दे दीज पीपल स्टार्ट अराउंड 13 और 17 years of age, means before 12th they started their entrepreneurial journey. Yeah, yeah. That is So good. So that's what, like, explore everything. Whatever you want to explore, explore. That will be great. And now, because software-driven startups are going like crazy, so uh, डिस्ट्रीब्यूशन सबसे डिफिकल्ट होता है, राइट? आपने कुछ आइडिया बनाया, उसको हुँ, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? बिकॉज ऑफ बिल्कुल। इंटरनेट, दैट डिस्ट्रीब्यूशन has हुँ, become very accessible and anybody can do it at super affordable cost, right? तो हुँ। आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है, आप उसमें प्लीज गो फॉर इट, दैट्स व्हाट यू शुड बी डूइंग। But don't you think lakhs of people preparing for JEE and हाँ, doing the same thing, studying physics, chemistry and mathematics, हाँ, so उससे रियल वर्ल्ड की नॉलेज, क्योंकि देखो करना है तो अच्छे से करो, 100% दो अपना, एक कमरे में हाँ, बंद रहो एंड 2 साल, आई थिंक आपने भी किया होगा, बहुत हाँ, हाँ, बहुत हाँ, बहुत बहुत साल, टफ होता बहुत टफ होता है एंड अच्छे से करो, अगर मतलब जिंदगी 2 साल के लिए रुक जाती। रुक जाती है कमरे में बंद, नो हाँ, हाँ, सोशल, नो एक्सप्लोरेशन, करेक्ट। नो पार्टीज़ एटी, सब हम्म। कुछ बंद करना पड़ता है एक बार तो। करेक्ट, तो एक्सप्लोरेशन करेक्ट। वहाँ पे रुक जाएगी और हाँ, एक हाँ। तरह रियल वर्ल्ड एक्सप्लोर कर लो, सी फॉर सम बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़, रियल दुनिया में क्या चल रहा है वो सीख लो अब तो, या डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपने कहा, तो हम्म। स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, तो देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज़ आल्सो। और एक तरफ है कि टेक अ कॉमन वे व्हिच इज़ स्टडीइंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, गेटिंग अ गुड हाँ, कॉलेज, तो ये हम्म। 2 वेज़ हैं, तो दैट्स व्हाई लुक, आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन।
Yeah, that is completely fine, and it is very subjective choice that an individual has to take. उसको नहीं मजा आता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, उसको आर्ट्स लेना है, उसको कॉमर्स लेना है, इट इज कम्प्लीटली देयर चॉइस। एंड उसके बाद आगे क्या करना है, उनको बीकॉम करना है या फिर नहीं बीकॉम नहीं करना है, उनको कोई स्टार्टअप चालू करना है, इन्फ्लुएंसर बन जाना है। सो लुक, वट एवर यू शुड एक्सप्लोर वट एवर यू वॉन्ट टू। अगर अ, 2 साल करना है आपको, 6 महीने तो अपने आपको टाइम देना पड़ेगा ना, कि यार हुँ, ठीक है, मैं आई डोंट नो अगर मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लेट मी गिव इट अ शॉट फॉर 6 मंथ्स। एंड देन हुँ, आपको अपने आप, यू आर द बेस्ट जज फॉर योर सेल्फ, राइट? एंड देन यू अंडरस्टैंड कि यार लोग मेरे से फॉर एग्जाम्पल कम मेहनत करके भी बहुत ज्यादा नंबर ले आते हैं, जबकि मैं पूरा टाइम लगा रहता हूँ और तब भी नहीं आ रहा है, राइट? हुँ, एंड देन इट इज अप टू यू कि यार नहीं, बट आई वांट टू बी एन इंजीनियर, सो you still pursue that for next 1.5 years, or by that time for first 6 months you understood this is not your cup of tea and you should not be doing this at all. It is affecting your mental health and also physical health, and then हुँ, you should be focusing on something else. Maybe you are good as an artist, right? हुँ, तो आप उसको pursue करो instead of engineering. You can pursue architecture, राइट? हुँ, अभी डिजाइन के इतने कोर्सेज आ गए हैं, तो आप आर्टिस्ट हो तो बी डेस्क करो इंस्टेड ऑफ बी टेक। हुँ, दैट्स हाउ यू शुड बी आर्च करो। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस नाउ, या, एंड थैंक्स टू ऑल द ऑनलाइन एजुकेशन, आप पहले ही सीख सकते हो जो भी आपको सीखना है या। फ्री में। तो आपने क्या आपका जो का प्लान था वो इसलिए बना कि लाइक आपको प्लेसमेंट नहीं मिल रही थी एनआईटी आफ्टर? नहीं, नहीं मिल रही थी यार, ऐसा नहीं था। मैं जानबूझ हुँ, के आए। सो पहले ही फर्स्ट मंथ में ही जो कंपनीज़ आई थी, एंड हुँ, उसके बाद मैं बैठा नहीं था। सो आई डिसाइडेड कि यार नहीं, मेरे को नहीं बैठना है। हुँ, प्लेसमेंट तो मिल जाती, उसका मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो फर्स्ट 5 के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था, सो आई वाज़ लाइक कि ओके, कुछ तो है जो मैं वहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ, लेकिन फिर इंटरव्यूज़ में नहीं हो पाता है मेरा। हुँ, इवन टेक्निकल कंपनी जो थी ना, ये तो चलिए नॉन टेक भी आती हैं, टेक्निकल भी आती हैं, हुँ, और मेरे कहीं से भी मैं टॉप 100 में भी नहीं होऊंगा अपने टॉप, मतलब परसेंटाइल वाइज इन टर्म्स ऑफ सीजीपीए। बट हुँ, पहली जो टेक्निकल कंपनी आई थी उसमें भी इंटरव्यू तक चला गया था मैं। हुँ, हुँ, उसके बाद सीजीपीए वगैरह डेफिनेटली बिकम्स अ चैलेंज। सो आई, उसके बाद मास्टर्स का तो एज आई सेड कि इट वाज मोर ऑफ आई वांटेड टू परस्यू दैट एनवायरनमेंट में, इसीलिए मैंने मेजर किया। एंड एयर वाज समथिंग जो कोई भी सॉल्व कर नहीं पा रहा था, एंड मैं हुँ, ऐसे ही जाके और कुछ स्टार्टअप बना दूं एयर के ऊपर, राइट? एटलीस्ट टू माई माइंड इट मेड नो सेंस, बिकॉज it is super difficult. Air as a subject is very, very complicated. There are other startups out there working on air with people having no knowledge around aerosol science. हुँ, Look, most probably they are not going to succeed. They might do something, हुँ, right? But at a larger scale without having knowledge of that subject. अभी आप AI ML पे बना रहे हो, राइट? हुँ, कोई तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना पड़ेगा ना यार। मतलब आप, मैंने 12वीं करी नहीं और मैं AI ML विदाउट इवन स्टडिंग, या तो आपने ठीक है वो 2 साल नहीं लगाए उसमें और AI ML के कोर्स कर करके एंड देन यू बिकेम एन एक्सपर्ट, हुँ। राइट? तो एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तभी आप उस फील्ड में बोल भी सकते हो कुछ, कोई आपको मानेगा भी। तो ऐसे ही कर दोगे चालू, तब तब तो मतलब टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट यू आर गोइंग टू फेल। तो 5 कंपनीज़ के बाद ऐसा क्या हुआ था कि लाइक यू डिडन्ट आपका डिसीज़न बन गया कि अब तो मैं नहीं बैठूँगा? नहीं, हो नहीं रहा था ना यार, पांचों में हुआ नहीं और मैं वहां तक पहुंच गया। हाँ, सो इसीलिए आई वाज लाइक कि नहीं, कुछ तो है प्रॉब्लम, तो नहीं बैठता हूँ मैं। लेट मी फिगर आउट कि क्या करना है। सो इवन हुँ, माय पेरेंट्स पुश्ड अ लॉट कि नहीं नहीं, जॉब तो ले ले, कैसी भी ले ले, जॉब तो ले ले। क्योंकि रिलेटिव्स वगैरह भी बोलते हैं कि अच्छा एनआईटी चला गया लेकिन जॉब नहीं लग रही, कुछ तो प्रॉब्लम है। सो हाँ, अगेन आई एम नॉट वरीड अबाउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी। हुँ, सो उसका कोई लोड नहीं लेता मैं। हुँ। तो उसके बाद फिर आपने स्टार्ट कर दिया कि एआर की मेरे को इन डेप्थ नॉलेज लेनी है, इसलिए आई विल डू अ डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंस इन फ्रॉम या आईआईटी या बॉम्बे। या तो डू यू थिंक एंड अब आपने आईआईटी बॉम्बे से डिग्री कर ली एंड हाँ यू एंटरप्रेन्योरशिप में आपने माइनर भी कर हाँ। ज यू आर एबल टू आंसर कि क्या एनआईटीज़ और आईआईटीज़ आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में हम्म। हेल्प की? मीन्स बीइंग यस। फ्रॉम एन आईआईटी
लाइक क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं? एक एंटरप्रेन्योर को क्या-क्या हेल्प मिलती है अगर वो आईआईटी से है? और एक तरफ एक बच्चा अगर सिंपल कॉलेज से है, वो स्टार्टअप करना चाहता है, कितना एक डिफरेंस Like, आता है? so I think IIT बॉम्बे was the I was lucky कि मैंने आईआईटी बॉम्बे ही चूज किया बिकॉज वहीं पे पहली बार मेरे ख्याल से इंडिया में हुँ, क्रेडिट कोर्सेज हुए थे ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड हुँ, बिकॉज वो क्रेडिट कोर्स था इसीलिए मैंने लिया वो कोर्स एंड देन लकीली आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू एंटरप्रेन्योरशिप अदरवाइज शायद मैं करता ही नहीं वो परस्यू भी नहीं करता सो हुँ, दैट्स लक सो आईआईटी बॉम्बे ने जो स्टार्ट किया आई बिलीव नाउ एवरी अदर कॉलेज इज डूइंग द सेम कि हुँ, नेटवर्किंग इवेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा हो हुँ, एंड एवरीबडी इज फॉलोइंग नाउ एंड हुँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी और कॉलेज से हैं तो आप किसी और कॉलेज के इंक्यूबेटर में जाके और बात नहीं कर सकते हैं सो incubators are different entity all of us should understand this कि अगर आईआईटी बॉम्बे है या आईआईटी दिल्ली है फॉर दैट मैटर तो उसका जो इंक्यूबेटर है उसके पास ये मैंडेट नहीं है कि सिर्फ आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स को ही लेना है आप मैं अगर किसी और कॉलेज से हूँ हुँ, दिल्ली में डीयू से हूँ मैं या आईपी यूनिवर्सिटी से हूँ मैं या फिर इग्नू से हूँ मैं ओपन से कर रहा हूँ मैं तो मैं भी जाके वहाँ पर और बोल सकता हूँ कि ओके मैं एक स्टूडेंट हूँ या पास ग्रेजुएटेड हूँ हुँ, मेरे को ऐसा ऐसा आइडिया है कैन यू हेल्प तो हुँ, इट इज डेफिनेटली अबाउट परसिस्टेंस हो सकता है वो पहले बोले अरे नहीं नहीं हम आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगे हो हुँ, सकता है राइट बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू गेट थिंग्स डन नो हुँ, बडी इज गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर यू हैव हुँ। टू गेट इट डन एनी विच वे एक क्वेश्चन कि आपको चलो ये तो था कि चलो एआर पे कुछ करना है। अब ये आइडिया कब कैसे कैसे डेवलप हुआ कि हम रखेंगे एक एक्सटर्नल पार्ट बनाएँगे जो हम एयर कंडीशनर पे रखेंगे, जिससे जो इनटेक होगी एयर की वो प्यूरीफाई हो जाएगी। ये इसका प्रोसेस बता सकते हो थॉट प्रोसेस कैसे हुआ? बिल्कुल यार अभी सब सोचते हैं कि काफी आसान रहा होगा ये तो बहुत ही ऑब्वियस है एंड ऑल ऑफ दैट ये करने में 2.5 साल लग गए हमको हुँ, वी बर्नड आवर फिंगर्स इन टर्म्स ऑफ टाइम रिसोर्स मनी हुँ, जैसा मैं बता रहा था हमको यही समझ में आया कि आपको कंज्यूमर के साथ इंटरेक्ट करना होता है बहुत ज्यादा हुँ, और सही क्वेश्चंस पूछने होते हैं अब मैं जाके ये नहीं पूछ सकता कि आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा हुँ, ठीक है वो दैट इज द वर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क हुँ, तो जब हमने ठीक क्वेश्चंस पूछे हमको समझ में आया कि यार दूसरे जो सॉल्यूशंस अवेलेबल है हम तो डेल्टा इन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम सिर्फ टेक्नोलॉजी 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 करे जा रहे हैं हुँ, जबकि टेक्नोलॉजी से उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है हुँ, कंज्यूमर को हुँ, व्हाट दे और वो यूज ही नहीं कर रहे हैं हमारा ही नहीं किसी और का भी प्रोडक्ट जो उन्होंने खरीद भी रखा है हुँ, वो देव इन्वेस्टेड मनी तो हुँ, मतलब लिटरली ऐसा कि लोगों ने 10 एयर प्योरीफायर ले लिए और सब के सब डब्बे में रखे हुए हैं ऐसे भी लोग हैं राइट सो हुँ, एंड दे आर नॉट यूजिंग इट एट ऑल तो हुँ, हमें जब वो इंटरेक्शंस की जब लोगों के घर में गए हम जो चीजें तब समझ में आई मतलब जस्ट इमेजिन आई हैव स्पेंट इन वन स्ट्रेच आई हैव स्पेंट 3 मंथ्स हुँ, एवरी संडे तो मंडे टू सैटरडे तो हमारा वैसे भी वर्किंग रहता है हुँ, एवरी संडे फॉर 3 straight months हुँ, टॉकिंग टू कंज्यूमर्स एंड वो हुँ, फिर उनसे बात करता हुँ, व्हाट्सएप पे भेज देता था मैं पहले कि सर मैं कॉल करूंगा मैम मैं कॉल करूंगा एंड उसके बाद देवर लाइक कि हाँ इतने बजे कॉल करना तो उस हिसाब से आई शेड्यूल माय एंटायर डे संडे एंड हुँ, उसके बाद जब मैं कॉल करता कि अरे नहीं नहीं अभी रिलेटिव्स आए हुए हैं चलो बाद में कॉल कर लेना अभी नहीं करूंगी हुँ, राइट हुँ, इस तरह से अभी मैं बाहर हूँ ऐसा ऐसा करके सो बट आई वॉज एबल टू गेट अ लॉट ऑफ डेटा हुँ, फ्रॉम देम ऑल्सो सो दिस वॉज वन सो जहां से मुझे समझ में आया कि यार हुँ, प्रॉब्लम विद आप एज अ देखिए जब हम कुछ बना रहे होते हैं ना तो हमको अपने आइडिया से इतना ज्यादा प्यार हो जाता है या अपने प्रोडक्ट से इतना ज्यादा प्यार हो जाता है कि हम सामने वाले के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं हुँ, तो वैसा मैंने ट्राई किया कि कैन आई पुट माई सेल्फ इनटू द शूज ऑफ अ कंज्यूमर तो हुँ, वैसे किया एंड देन एक बहुत अच्छा एनेक्डोट जो मुझे मिला दैट वाज नोबडी इन माय टीम हुँ, वाज यूजिंग एर्थ प्रोडक्ट्स राइट तो हुँ, अब जब मैंने उनको लिटरली बुला के और मैंने वन ऑन वन इंटरेक्शन में मैंने बोला कि ओके आप हुँ, लोग रोज बात हुँ, करते हो कि एयर कितनी हुँ, इंपॉर्टेंट है हुँ, साफ हवा लेना कितना इम्पोर्टेंट है हुँ, आपके आपकी हेल्थ के लिए आपने आपके फैमिली की हेल्थ के लिए कैन हुँ, यू हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाई यू हैव नॉट परचेज आवर प्रोडक्ट
तो हुँ, जब हुँ, वो इंटरेक्शंस हुए एंड हुँ, कि जब उन लोगों ने मतलब इतना टफ क्वेश्चन पूछा कि उनको अब सच्चाई बतानी पड़ेगी, राइट? हुँ, ऑल्दो बीइंग एन एम्प्लॉय, और फिर डिस्काउंट वगैरह तो हमने किया ही था। हुँ, तो तब जो सच्चाई निकल के आती है, उससे हुँ, आपको जो पता लग सकता है, दैट इज़ लाइक एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। हुँ, फिगर्ड आउट कि यार लोग यूज़ नहीं करते हैं हुँ, प्रोडक्ट, बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो ऐसा नहीं है कि लगा दिया और नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। सो हुँ, ये जो मैं बता रहा था कि किड्स के लिए लेते हैं, पेरेंट्स के लिए लेते हैं, तो वो वाला एक बार बंद हो गया तो अगले साल चलता है। सो हुँ, आप ट्रिगर पॉइंट नहीं है, सबसे पहले आप किसी भी अपने घर में जाओगे या किसी भी रूम में जाओगे, पहले लाइट ऑन करते हो आप, ताकि हुँ, आपको चीज़ें दिखे। फिर उसके हुँ, बाद एनीथिंग रिलेटेड टू थर्मल कंफर्ट, हो सकता है पंखा, फैन, हुँ, या फिर एसी या फिर हीटर आप लगाओ बेसिस ऑन कि वेदर कैसा है। हुँ, एंड in one of the corners you might have an air purifier which you will certainly forget to turn on, हुँ, क्योंकि कोई भी ट्रिगर पॉइंट नहीं हुआ, अगर मैं आके बैठ गया विदाउट टर्निंग लेट्स से माय एसी ऑन, मेरे को इतनी हुँ, गर्मी लगेगी, ट्रिगर पॉइंट गर्मी लगेगी हुँ, कि मैं जाऊंगा और फिर एसी चलाऊंगा, राइट? हुँ, दैट डजंट हैपन व्हेन यू आर यूजिंग एन एयर प्यूरिफायर। तो आपने हुँ, नहीं चलाया चलाया, मेक्स नो डिफरेंस इन योर हुँ, लाइफ, हुँ, एंड इसीलिए वो हैबिट में नहीं जाता, हुँ, फिर इसीलिए परसीव्ड वैल्यू बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि आप यूज ही नहीं करते। तो हुँ, ये सब चीजें समझ में, देन वी सेड कि अच्छा यार, प्रॉब्लम तो है, एयर हुँ, पोल्यूशन प्रॉब्लम तो है, अभी सब एक ही सॉल्यूशन से सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज एयर प्यूरिफायर। हुँ, कैन वी फिगर आउट सम अदर वे? हुँ, सो क्लोजेस्ट एज आई सेड वाज एसी। एसी के साथ किया, हुँ, उसमें बहुत टाइम लगा बनाने में, एंड हमको भी लगा था शायद सिर्फ साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से ऑर्डर्स आएंगे, फिर साउथ हुँ, इंडिया में से परचेज आने लगे, तो हमको दो वेरिएंट बनाने पड़े, एक समर, एक विंटर। हुँ, विंटर टू डील विद एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन, समर टू डील विद मॉडरेट टाइप ऑफ पोल्यूशन। तो वो बनाया, उसके बाद साउथ इंडिया से काफी ऑर्डर्स आए, नॉर्थ इंडिया से भी आए, ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर ऑर्डर्स कम फ्रॉम साउथ इंडिया, विच is a surprise for most of the people, हुँ, and 50% is from North India. So yeah, that's how, um, like the and it has been customer interaction. I would say the base was customer interaction, जिसके basis पे we made all the changes. हुँ। कैन वी नो वो एग्ज़ीक्यूशन जर्नी हमने 2.5 साल बताए, लाइक आपको पता चल गया कि एयर पे कुछ करना है, फिर हमको पता चल गया कि एयर प्यूरीफायर करने के लिए एयर Hmm. प्यूरीफायर की अभी मार्केट में एक्जिस्टिंग एयर प्यूरीफायर्स हैं, जो सॉल्यूशन है, बट इसका कोई यूज़ नहीं कर रहा। फिर आपने Correct. सोचा एसी के साथ कुछ करना पड़ेगा हमको कि Correct. इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन मिल जाए, जिससे शायद लोगों को स्पेशली ऑन ना करना पड़े वो चीज़, राइट? हाँ, तो हाँ। यहाँ तक नहीं होगी। अब वो एग्ज़ीक्यूशन जर्नी बताओ कि आइडिया आ गया चलो, एंड हमने 2.5 साल थोड़ा-सा बताएँगे कैसे एग्ज़ीक्यूशन स्टार्ट हुआ एंड कौन-कौन से चैलेंजेस फेस हुए और फिर कैसे सॉल्व एसी किया? एयर प्यूरिफायर में ना, हाँ, सो हाँ करेक्ट, तो अभी बना तो लिया जो काम बहुत अच्छा करता है, लेकिन अब उसको बेचे कैसे? क्योंकि ऐसा बनाने कुछ का हम चाह रहे हैं हम कि आपको बनाने पता चल का। गया हाँ, कि आपको पता चल गया कि एयर प्यूरीफायर बहुत सारे हैं जिसका कोई यूज़ नहीं कर रहा। ये तो आपके हाँ, हाँ। आइडिया है सिर्फ़ स्टार्टअप का, लाइक कि नहीं, नहीं, ये भी पहले हमने खुद ही एयर प्यूरीफायर किया था ना यार लॉन्च। एंटी माइक्रोबियल एयर प्यूरीफायर हमने 2020 से हुँ, स्टार्ट किया, 2021 में लॉन्च किया। एंटी हुँ, माइक्रोबियल एयर प्यूरीफायर बेचा, उसको हुँ, टेस्ट किया हुँ, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली, फिर बेचा उसको हुँ, 2 ढाई साल, और हुँ, फिर बेचने के दौरान ही हमको ये सब इनसाइट्स मिली जब हम कंज्यूमर से इंटरैक्ट कर रहे थे, और 2023 में वी मेड अ हुँ, पिवट। ओके। एंड इसकी जर्नी शेयर करेंगे बनाने की कि कुछ चैलेंजेस आए, कैसे ओवरकम अ, किया? एसी एयर प्यूरीफायर का ना अभी तो, या राइट, सो वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही कि अभी इतना साल आप एयर प्योरीफायर बेच रहे थे, अभी आपने पिवट कर लिया, एक ऐसी चीज बना दी जो हुँ, काम तो करती है, लेकिन अब उसको बेचे कैसे, क्योंकि दुनिया में किसी ने देखा नहीं ऐसा प्रोडक्ट, सुना नहीं उसके बारे में कभी भी, हुँ, और कोई सर्च नहीं करता उसके बारे में। तो हुँ, हुँ, पूरा हुँ, डिजिटल मार्केटिंग काम किस पे करता है कि भाई कीवर्ड पकड़ लो, उस पे आप चलाइए, हुँ, बट यहाँ पे कीवर्ड्स ही नहीं है। हुँ, तो वो बहुत ज्यादा टफ रहा था, एंड देन हमने क्या किया कि आईटी कानपुर के साथ टेस्टिंग किया, और फिर हुँ, हमने वहाँ पर बताया कि आईटी कानपुर में, क्योंकि हमारा इंक्यूबेशन था तो यहीं पे डेवलपमेंट हुई है, कैन यू प्लीज हेल्प इन द प्रेस रिलीज ऑफ इट। तो हुँ, प्रेस रिलीज हुआ, वो हुँ, काफी स्ट्रैटेजिक था, ऑलमोस्ट सारे नेशनल न्यूज चैनल में हम आए थे, हुँ, बट सेल नहीं आई थी। सो सेल इसलिए नहीं आई थी क्योंकि अभी आई कैन कनेक्ट द डॉट्स, बट उस टाइम पे हमें नहीं समझ में आता था, वी वर प्रेइंग एवरी डे कि यार हुँ, आज कुछ मैजिक होगा, आज कुछ मैजिक होगा, आज होगा, लेकिन वो मैजिक कभी नहीं हुआ। हुँ, बट अभी हम बता सकते हैं कि प्रॉब्लम वाज हमारी जो वेबसाइट थी वो अच्छी नहीं थी,
बिल्कुल भी। वो वर्डप्रेस पे थी। जो प्रोसेस इंटीग्रेशन था, जो पेमेंट इंटीग्रेशन था, वो बहुत ही गंदा था। एंड दैट इज व्हाई पीपल, एक ट्रस्ट फैक्टर नहीं आ रहा था लोगों को। हुँ, Amazon पे भी हमारी बिल्कुल शायद उस टाइम लिस्टिंग थी भी नहीं, या बिल्कुल ही नई लिस्टिंग थी जिसमें कोई रिव्यू वगैरह कुछ भी नहीं था। सो हुँ, ऐसी नई चीज के लिए हुँ, डर रहता है लोगों में। हुँ, तो अगर हम शायद उसको थोड़ा डिले करते बाय फ्यू मंथ्स, एंड हुँ, हमारी वेबसाइट अच्छी होती, और अमेजोन में लिटरली हुँ, मैच्योर हो जाती लिस्टिंग अगर हमारी, तो बेटर रिजल्ट्स हो सकते थे। बट वो नहीं थे। हुँ, उसके बाद फिर जब वो सब हो गया, तो टीममेट्स छोड़ के गए हमको कि नहीं बिक रहा है भाई, नहीं बिकता है, ये बहुत मुश्किल है। हुँ, एंड a lot of challenges, but still we were like कि ठीक है, नहीं करना है, हो सकता है, हो सकता है, because it works very very well. हुँ, फिर थोड़े थोड़े लोगों ने लेना चालू किया, हुँ, कि ठीक है यार, लेके देखते हैं क्या है, कुछ नहीं जा रहा 3,000 रुपए में, 2,000 2,500 में। तो लिया हुँ, लोगों ने, उनको जब पसंद आया, हुँ, लोगों को समझ आया कि अच्छा यार, ये तो काम करता है, ये तो बहुत अच्छा काम करता है। हुँ, तो हमारा वर्ड ऑफ माउथ धीरे धीरे चालू हुआ, बट पहले 1,000 यूनिट बेचने में हमको 8 महीने लग गए। जो कि हुँ, बहुत बड़ा टाइम है। मतलब हमें लग रहा था, हमने अपने लिए 1,000 यूनिट, हमारे लिए उस टाइम पे सोचना बहुत बड़ी बात थी। हुँ, और हमने टारगेट किया था कि 6 महीने करते हैं। हुँ, जैन से जून, जून क्योंकि हमने स्टार्ट जून में किया था, तो जब हमारा एनिवर्सरी आती है हुँ, एर्थ की, उस टाइम पे हमारे पास 1,000 यूनिट होने चाहिए, एंड देन विल गो टू हुँ, इन्वेस्टर्स। तो हुँ, हमने फिर ट्राई किया, और फिर 8 महीने लग गए, 6 महीने की बजाय 8 महीने लग गए 1,000 यूनिट पे। एंड हुँ, इन्वेस्टर्स के पास गए, एंड देवर लाइक कि यार, सिर्फ 1,000 यूनिट, हुँ, एक हुँ, हजार यूनिट फॉर 2,000 इज हुँ, 20 लाख रेवेन्यू। तो हुँ, 20 लाख के रेवेन्यू पे आप मेरे पास आ गए, हुँ, राइट? सो उससे पहले हालांकि हमने फंड रेज किया हुआ था, बट अभी बिकॉज ऑफ पिवेट सबको एयर प्यूरिफायर एज एन इंडस्ट्री समझ में आता था, बट दिस वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर, तो वो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। तो फिर किसी भी इन्वेस्टर ने नहीं बोला कि दे आर इंटरेस्टेड, बट वी देन बाय देन वी स्टार्टेड गेटिंग some angels, because they used our product, they liked our product and said कि यार है, मार्केट तो है इसका, so आई एम विलिंग टू टेक अ बेट। तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा हमने एक सीसीपीएस होता है, कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स। सो आप उसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके होते हैं, थोड़ा लीगल है ये, बट फंडिंग दो तरीके से हो सकती है, राइट्स इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। तो अभी उसमें टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, बट ये जो हमने किया था उससे क्या होता था कि आप लॉन्ग टर्म में थोड़ा 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 अमाउंट उठा सकते हो। तो वैसे करके हमने किया था, लॉन्ग टर्म शॉर्ट खेला कि ठीक है, हम 12 महीने में लेट से 50 लाख उठाएंगे। किसी ने 1 लाख डाल दिया, किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख, सब लिया हमने कि ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, यू विल बी नाउ आवर शेयर होल्डर। सो वैसे तो अब आते हैं शार्क टैंक पे। शार्क टैंक पे कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? इट वॉज ग्रेट। हम पहले से ही अप्लाई कर रहे थे, हर बार किया हमने अप्लाई, बट हमें पता था नहीं होगा। हुँ, उसके बाद अभी जब हुआ, तो पिछले की सारी कसर भी निकाल दी, हुँ, क्योंकि उनका जो प्रोमो था, ट्रेलर था, उसके बाद 2 days टू गो, 1 day टू गो, सब में हमारा मेंशन था। अभी हुँ, आप देखिए कि 150 स्टार्टअप्स हैं जो एयर होने वाले हैं, 200 जो आए थे, राइट? हुँ, 150 स्टार्टअप्स में 150 तो नहीं आते हैं उस 1 मिनट की क्लिप के अंदर, राइट? हुँ, हुँ, तो कुछ ही आते हैं, एंड सम ऑफ देम रियली आर फॉर्चुनेट वंस, एंड हुँ, it is all luck. Maybe we were at the right time when we applied and when we got selected. So it was, I believe, luck that played a part. And then जब शार्क टैंक पे गए हम, जब फाइनल सिलेक्शन वगैरह हुआ, एंड हुँ, जब वहां पर गए, तो बहुत ही उनकी जो टीम है, शार्क टैंक की टीम है, दे आर हाईली प्रोफेशनल्स। हुँ, 3 दिन के अंदर हुँ, सब कुछ। उनकी एक टीम होती है जो कि कपड़े डिसाइड करती है, एक टीम होती है जो आपको बताती है कि आपको स्टार्टिंग के 30 सेकंड में क्या बोलना है, वो हुँ, पिच जो कि सभी इंडियंस के साथ रेजोनेट की जा हुँ, सके। एंड एक टीम जो कि डिजिटल डिस्प्ले देखती है, एक टीम जो कि आपका पूरा डिस्प्ले जो हार्डवेयर रहता है, जो वॉल डिस्प्ले रहता है, वो देखती है।
फिर एक बिजनेस की भी टीम होती है जो सब वेरीफाई करते हैं कि जो आप नंबर्स बोल रहे हैं वो सही है नहीं है। तो हर एक चीज के लिए, हर एक छोटी छोटी चीज के लिए वहाँ पे एक टीम होती है, उनको पता है उनको क्या करना है, एंड दे आर हाईली प्रोफेशनल पीपल। शार्क से क्या क्या सीखने को मिला, बताएंगे? शार्क से देखिए, वो जब आप टैंक के अंदर जाते हैं उस टाइम पे, यस देर आर सम कंट्रोवर्सीज की ऐसा फेक है, ये वो है, बिल्कुल भी फेक नहीं होता है। वहां पर स्टार्टिंग में, यस, जब आप बोल रहे होते हैं 30 सेकंड, तब आप रीटेक कर सकते हैं कि एक बार मैंने बोला और मान लीजिए कि नहीं हो पाया मेरे से डिलीवर, सो देल बी लाइक कि अच्छा कोई बात नहीं, रिलैक्स, पानी पी लो और दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो ये हो सकता है स्टार्टिंग के 30 सेकंड के दौरान ही। एक बार लेकिन जब आपने अपना पिच स्टार्ट कर दिया, देन देर आर नो रीटेक्स, वो सीधा ऑलमोस्ट 1 घंटा, 1 घंटा 20 मिनट के आसपास टू एंड फ्रो, धड़ाधड़ वहां से क्वेश्चन आते हैं, आपको आंसर करना होता है। तो बहुत ज्यादा ग्रिल करते हैं डेफिनेटली आपको, बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस है लेकिन मजा आता है। सो दैट्स हाउ यू आर रेज्ड एज एन एंटरप्रेन्योर, राइट, टू डील विद सच सिचुएशंस। कोई स्पेसिफिक लर्निंग शेयर करना चाहोगे किसी शार्क से मिली हो? लर्निंग्स, अभी वी आर इन टच विद शार्क्स। लर्निंग्स तो तभी होती है जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, राइट। तो अभी मैंने टाइम स्पेंड नहीं किया है, जितना भी किया है वो मेरे ख्याल से अभी के लिए काफी कम है टू शेयर एनीथिंग, बट वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि किस तरह से हमको अप्रिसिएशन मिला। जैसे अमन ने थ्री इडियट्स के साथ हमको कंपेयर किया, विनीता ने बोला कि प्रोडक्ट मार्केट की इससे अच्छी परिभाषा नहीं हो सकती है, इससे इसे तोड़ू डेमो हमने आज तक नहीं देखा, सो ऑल ऑफ दैट। सो वो जो रिमार्क्स, कमेंट्स हमको मिले, वी वी आर वेरी फॉर्चुनेट, बिकॉज आई एम श्योर हम सबने देखा है कि अगर गलत जाता है तो कहाँ तक गलत जा सकता है। शार्क टैंक का एपिसोड। कोई ऐसी मोमेंट्स जो जो एयर नहीं हुई और आप यहाँ पे शेयर करना चाहें? राइट, सो पीयूष वॉज वेरी इंटरेस्टेड, बट उनको लगा शायद कि हमारे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अभी कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। तो बस वो पार्ट उन्होंने, वो पूरा हट गया जिसमें पीयूष वॉज सुपर इंटरेस्टेड। ड्यू टू प्रीवियस इन्वेस्टर्स। हु वाज योर फर्स्ट इन्वेस्टर? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? फर्स्ट इन्वेस्टर की क्या बताऊं यार। तो पहले क्या हुआ कि आए, जैसे मैंने बोला EIR फेलोशिप, तो वहां पे जो एंड हो रहा था वो होता था कि आप एक पिच देंगे, उसके बाद दे विल डिसाइड कि होगा या नहीं होगा। तो मैंने पिच किया और उसके बाद उन्होंने, जिसमें मेरा EIR था, तो उन्होंने बोला हाँ करते हैं, लेट्स टेक इट फॉर IC, दैट इज इन्वेस्टमेंट कमिटी, एंड इन्वेस्ट करेंगे, हम करेंगे। और उसको हो गए 2 महीने, 3 महीने, और वो हो ही ना, इन्वेस्टमेंट आगे ही नहीं बढ़ रहा, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। देन माय डायरेक्टर अनुज शर्मा, ही सेड कि यार नहीं हो बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, तुम कुछ भी कर लो, हो नहीं सकता ये। नाउ लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, दैट इज लेट्स रेज फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो वो हमने किया। पहला हमने फिर 30 लाख रुपए उठाए फ्रॉम वेरियस पीपल। अगेन फिर से वही वाला अप्रोच हमने यूज किया था कि किसी को अगर 1 लाख देना है, 2 लाख देना है, 3 लाख देना है, तो जो जो देता जाएगा उनको वैसे वैसे शेयर्स मिलते जाएंगे। वो चीज की थी हमने, एंड मुझे यकीन नहीं था कि मैं 30 लाख फ्रेंड्स, फैमिली, मेंटर्स, उनके दोस्त वगैरह उनसे रेस कर पाऊंगा। बट फॉर्चुनेटली वी वर एबल टू डू दैट। सो दैट वाज माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जर्नी। फ्यूचर में क्या-क्या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं अर्थ के, वो कुछ रिवील कर सकें अगर आप? या श्योर। सो जैसा मैं बता रहा था कि 24 घंटे, 20 घंटे वी आर इंडोर्स, इंडोर्स में सराउंडेड बाय एसीज, चाहे वो घर का है, कार का है, या ऑफिस का है, या फिर आपके बच्चे का स्कूल का एसी है। सो सभी टाइप के एसीज से साफ हवा मिलनी चाहिए, बिकॉज अभी तो नहीं मिलती है एटलीस्ट। एंड वो अपने आप में बहुत 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 बड़ा मार्केट है। तो यही हम चाहते हैं कि आपको, वी वांट टू मेक ब्रीदिंग क्लीन a reality, as simple as that. The method can be different. कोई एयर प्यूरिफायर से कर रहा है, कोई अभी हम एसी से कर रहे हैं, कोई किसी और चीज से करेगा, बट द एंड ऑफ द डे एनीथिंग दैट इज हेल्पिंग यू ब्रीदिंग क्लीन becomes a part of our mandate, and we will do that. So अभी कार का प्रोडक्ट is something we will launch in some time. ऑसम। तो आपकी वैगन आर में भी आपको मर्सिडीज बेंज जैसी एयर क्वालिटी मिल पाएगी, दैट्स द इंटेंट।
ये फ़र्क होता है क्या इस चीज़ में? वो मर्सिडीज़ में एयर प्यूरीफायर ऑलरेडी लगा होता है। हाँ, उनका जो फ़िल्टर होता है वो अलग होता है, और जो ओके, आपकी वैगन आर में फ़िल्टर लगा होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। तो वैगन आर में प्यूरीफाइड नहीं आती एयर, ऐसा? नहीं, यस। कूल। तो आपके प्रोडक्ट्स में लाइक यू डिस्कस्ड अबाउट द कोटिंग के बारे में आपने डिस्कस किया, ये फ़िल्टर्स का मैकेनिज़्म के बारे में सर्च किया। उसके पीछे की टेक्नोलॉजी कुछ शेयर करना चाहेंगे? कोटिंग और फ़िल्टर के बारे में? श्योर। सो देखिए, फ़िल्टर बहुत सारे आते हैं, इट विल बी वेरी टेक्निकल दो, आई कैन गो इनटू डिटेल्स, बट ऊपर-ऊपर से मैं बता देता हूँ कि हुँ, अभी क्या होता है, कोई भी फ़िल्टर है, एयर फ़िल्टर, जस्ट ओके। इमेजिन आप 2 महीने, 3 महीने से एयर प्यूरीफायर यूज़ कर रहे हैं, हुँ, बट वो एयर प्यूरीफायर के अंदर ही सारे डस्ट, जर्म्स हैं। वो जर्म्स वहीं इकट्ठा होते हैं, वहीं ग्रो करते हैं, एंड दे कैन रीसस्पेंड इन द एयर टू इन्फेक्ट यू। हुँ, दैट कैन बिकम अ मेजर प्रॉब्लम, एंड दैट इज वाई वो टेक्निकली हमने गैप फिगर आउट किया था कि यार दे शुडंट बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फिल्टर्स। तो इसलिए हमने कोटिंग डेवलप करी। कोटिंग कीजिए आप अपने फिल्टर पे, एंड यू देन कैन हैव एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज टू योर फिल्टर, जो कि डीएक्टिवेट कर पाएगा जर्म्स को। हुँ, सो दैट वाज द बेसिक आइडिया। एंड हुँ, फिल्टर में अब प्रॉब्लम क्या होती है कि because of media, because of porosity, the dimensions of the fibers of the filters, हुँ, then the average pore size, etc., etc. हुँ, बहुत डिफरेंस हो सकता है इन टर्म्स ऑफ डस्ट होल्डिंग कैपेसिटी एंड प्रेशर ड्रॉप। तो डस्ट होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब हुआ कि एक बोतल है 1 लीटर की, एक बोतल है 2 लीटर की, किसमें ज्यादा पानी आ सकता है, राइट? एज हुँ, सिंपल एज दैट। तो आपको, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है फिल्टर में, वो आपको बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे, आइडेंटिकल, लेकिन ये इसमें होगा कि शायद 1 ग्राम ही, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल, इसमें हो सकता है 1 ग्राम डस्ट आए, इसमें उससे 2 गुना आ जाए हुँ, या 3 गुना आ जाए। तो हुँ, आपको देख के आप नहीं बता पाओगे कि अच्छा यार ये डिफरेंस रहेगा डस्ट होल्डिंग हुँ, कैपेसिटी में। उसके लिए आपको काफी सोफिस्टिकेटेड टेस्ट करने पड़ते हैं। और हुँ, प्रेशर ड्रॉप, तो हुँ, प्रेशर ड्रॉप में जैसे आप मास्क लगाते हैं, राइट? तो एक मास्क आप ऐसा समझिए जिसमें आपको जो रेजिस्टेंस आती है वो बहुत कम है, और एक हुँ, में बहुत ज्यादा है, राइट? तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि आपकी मशीन के ऊपर भी रेजिस्टेंस आती है। जब भी आप फैन के सामने फिल्टर लगाते हैं तो रेजिस्टेंस आती है, और उसको आपको प्रेशर ड्रॉप के थ्रू ही टैकल करना होता है। तो हुँ, प्रेशर ड्रॉप एक बहुत ही ऐसा फेदर टाइप मास्क होगा, एक होगा जो बहुत टाइट होगा। तो अगेन आप वैसे नहीं पता लगा पाओगे, आपको बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे, हुँ। लेकिन जो बेटर होगा वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लॉन्गर लाइफ देगा, एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन टेक्निकली। तो अब तक जितना भी आपने इंस्टॉलेशन किया, जितने भी होम्स में, जितने भी एसीज़ में, कस्टमर फीडबैक स्टोरीज़ कुछ शेयर करना चाहेंगे? भैया सो काफ़ी ज़्यादा है कि हाँ, मतलब मैंने और भी टाइम स्पेंड किया है लोगों से बात करते हुए कि हुँ, सर आपने खरीद तो लिया है हमारा प्रोडक्ट, थैंक यू वेरी मच, लेकिन हाउ हुँ, डू यू नो दैट इट वर्क्स? हुँ, तो सोचिए, क्वेश्चन हुँ, कंज्यूमर से पूछना कि भाई अब आप बताओ खरीद के कि हुँ, भाई कैसे काम करता है हमारा प्रोडक्ट, काम भी करता है नहीं करता है। तो हुँ, यस, देयर वर सम जिन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता काम करता है या नहीं करता है, मेरे को उसके लिए एयर क्वालिटी मॉनिटर चाहिए। हुँ, देयर वर सम हु सेड कि मैंने एयर प्यूरीफायर के साथ टेस्ट कर लिया था आपका प्रोडक्ट, एंड हुँ, इसलिए आई नो इट वर्क्स। हुँ, कुछ लोगों ने थोड़े टाइम बाद फिल्टर निकाल के देखा और देखा कि कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो क्योंकि हुँ, कलर चेंज हो रहा था, दैट्स व्हाई दे न्यू कि अच्छा काम कर रहा है। देयर वर सम हु सेड कि आई कैन सेंस, आई एम सेंसिटिव इनफ, आई कैन सेंस कि कब एयर पोल्यूशन ज्यादा है कब कम है, तो दैट इज व्हाई आई नो योर प्रोडक्ट वर्क्स। किसी ने बोला कि पहले मेरे को एसी का हुँ, फिल्टर हर 2 महीने में साफ करना होता था, हर महीने साफ करना होता था, क्योंकि एयर फ्लो इतना कम हो जाता था कि ठंडक ही नहीं होती थी। अभी हुँ, आपकी वजह से अंदर वाला फिल्टर साफ ही रहता है मेरा, क्योंकि ये हुँ, सारा डस्ट कलेक्ट कर लेता है, एंड दैट हुँ, इज व्हाई आई नो इट वर्क्स। किसी ने बोला कि अभी कबर्ड में या फिर आपके डेस्क के ऊपर कम डस्ट है, हुँ, तो इस तरह से। किसी ने बोला कि मैं सिगरेट पीता हूँ तो पहले तो कमरे में स्मेल रहती थी, अभी हाँ, आपके बाद नहीं रहती, तो इसलिए मुझे पता है कि काम करता है। लिटरली ये एग्जांपल है। वन हुँ, ऑफ दो स्टोरीज विच स्टूड आउट वाज हुँ, एक केरला का कपल। तो उन्होंने बोला कि हम मॉस्किटो नेट यूज करते हैं वाइल हुँ, स्लीपिंग। तो हुँ, पहले क्या होता था, हुँ, मॉस्किटो नेट में डस्ट आ जाती थी और हर महीने
मेरी वाइफ को वो धोना पड़ता था। हुँ, अभी मेरे को 4 महीने हो गए हैं और हुँ, हमें धोने की जरूरत नहीं पड़ी, एंड दैट इज व्हाई आई नो इट वर्क्स। और उस हुँ, टाइम पे आई गॉट गूज बम्प्स कि वाओ, हुँ, ये हुँ, ऐसी स्टोरी। तो हुँ, फिर मैंने उनको बोला, सर आपने बहुत ही अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, क्या आप हुँ, उसकी वीडियो बना सकते हैं, मैं आपको कैशबैक वगैरह दे दूंगा। उन्होंने हुँ, कभी फिर उसके बाद कॉल नहीं उठाया, ना ही मैसेज का कभी रिप्लाई किया। तो ऐसा भी होता है। अब हुँ, मतलब इट वुड हैव बीन सुपर हेल्पफुल अगर वो शेयर कर देते, बट नहीं किया। अभी हुँ, नथिंग मच दैट वी कैन डू। हुँ, या वो एफर्ट बहुत कम लोग करते हैं। पर चलो करेक्ट। अब अगर मैं जा बात करूँ आपसे इंडिया की टियर 3 सिटीज़ की या फिर मतलब एक है कि टॉप टियर सिटीज़ हैं, पैसा भी ज़्यादा है लोगों के पास। दे करेक्ट। कैन बाय एक्सपेंसिव एसीज़, दे कैन बाय एक्सपेंसिव एयर प्यूरीफायर्स। हाँ, हाँ। बट बात करें एक रूरल एरिया की या फिर एक टियर 3 सिटी की जहाँ पे हर किसी के पास लोग तो बहुत हैं, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, बट हाँ, करेक्ट। लोगों के पास पैसा नहीं है। तो वहाँ के लिए कुछ प्लान है कि हाउ द पीपल कैन बी सेव्ड फ्रॉम दिस डिजीजेस लाइक अस्थमा? देखिए, वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है टियर 3 सिटीज में रिमेन्स कुक स्टव्स। तो इंडोर ही आप सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग दैट कुक स्टव, वो चूल्हा। हुँ, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने स्कीम भी निकाली थी एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह की। हुँ, यू हैव टू बी विजिलेंट, आप उसको अंदर ना रखिए, उसको बाहर रखिए, हुँ, एंड तब यूज कीजिए उसको। हुँ, या फिर बहुत सारे चूल्हे आ गए हैं अभी जिनसे बहुत कम धुआं निकलता है या फिर ना के बराबर धुआं निकलता है। सो हुँ, माई वाइफ इज फ्रॉम हिमाचल। हुँ, वहां पर ऑलमोस्ट सब चूल्हे इस तरह से डिजाइंड है घरों के अंदर कि हुँ, धुआं अंदर रहता ही नहीं है, वो एक पाइप लगी रहती है और सारा का सारा धुआं बाहर चला जाता है। हुँ, जबकि यही आप सारा देखेंगे पंजाब, हरियाणा, हुँ, यूपी में तो सब कुछ अंदर ही करते हैं और वहीं हुँ, आग जलाते हैं और वहीं पे धुआं फैलता है। हुँ, तो इंडिया के अंदर ये एग्जाम्पल है, एंड आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड। देयर आर लॉट ऑफ पीपल डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च। आप हुँ, गूगल स्कॉलर पे जाना और आप करना कुक स्टव नाम से सर्च करना, यू विल फिगर आउट कि नो स्मोक कुक स्टव पे कितना रिसर्च किया गया है। हुँ, बट विदाउट डूइंग दैट रिसर्च, इंडिया में हिमाचल के गांव के अंदर ऐसा हुँ, किया जाता है कि वो हुँ, पाइप के थ्रू सारा धुआं बाहर भेजते हैं, बट हुँ, इधर नहीं किया जा रहा है। राइट। सो हुँ, आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। हुँ, जो एंड टियर 3 विलेजेस वगैरह में भी आपको अवेयरनेस तो बढ़ानी पड़ेगी कि इस वजह से ये हो सकता है, एंड इसलिए आपको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। I think there are options which people can adopt, but they are not doing it just because of arrogance हुँ, and ignorance. हुँ। इग्नोरेंस फैक्टर है प्लस पैसा खर्चना इस चीज़ पे। Arrogance in terms of कि यार हम इतने सालों से कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ तो अभी भी कर लेंगे, and ignorance in the terms of कि कुछ नहीं होता इस सब चीज़ों से। ट्रिगर पॉइंट नहीं है ना ये, लाइक इट्स अ करेक्ट, स्लो। ट्रिगर पॉइंट नहीं है, एंड एकदम से नहीं रियलाइज होता है आपको। जब आप फिर 10 साल बाद, 15 साल बाद कुछ होने लगता है। हुँ, देखिए, बॉडी में फैक्टर ऑफ सेफ्टी काफी ज्यादा है। तो आप हुँ, एक किडनी पे भी जिंदा रह सकते हो, राइट। हुँ, लिवर तो कम काम कर रहा होगा तब भी जिंदा रह सकते हो, सेम विद लंग्स, हार्ट। ब्लॉकेज 95% हो गई है तब भी आप ठीक हो। तो हुँ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत है हुँ, बॉडी में, बट उसकी उसका रीजन ये नहीं है कि आप गंदी चीजें डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। सो पीपल बिलीव कि एयर पोल्यूशन तो एक इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, जबकि हुँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एयर पोल्यूशन एक इरिवर्सिबल डैमेज कर रहे हैं आप अपने लंग्स में। हुँ, तो घड़ा भरने वाली प्रॉब्लम है, ना कि इम्यूनिटी। इम्यूनिटी आपके पेट को चाहिए होती है, लंग्स को नहीं चाहिए। लंग्स का एक ही काम है, दैट इज गैस एक्सचेंज करना। कार्बन हुँ, डाइऑक्साइड बाहर और ऑक्सीजन अंदर। ऑक्सीजन फिर ब्लड में मिलके सभी ऑर्गन्स वगैरह तक जाती है, तभी आप एनर्जी बना पाते हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट अगेन टाइम लगेगा फॉर अस to realize the importance of air pollution as a subject and हुँ। the harm that it can have on us. 5 से 10 साल में कहाँ पे देखते हो आप अर्थ को? We'll be going global definitely. India में तो we will be doing every हुँ, bit and to help people breathe clean. हुँ, बट ओवरऑल अडॉप्शन मेरे ख्याल से बाहर ज़्यादा होगा, क्योंकि बाहर ऑलरेडी एयर प्योरीफायर ज़्यादा बिकते हैं इंडिया से। सो हुँ, गोइंग ग्लोबल इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट रूट दैट आई कैन सी, बट अभी तक हमने पिछले
अब 2 साल तो हो गए हैं हमें इंडिया में ही करते हुए, एंड यहाँ से जो लर्निंग्स मिली है तो हर टाइप का वेदर हमने यहाँ पर देख लिया, एंड दैट इज वाई वी आर कॉन्फिडेंट कि इफ वी वांट टू ग्रो ग्लोबल is something that we can now go for, and then definitely increasing penetration here in India, that remains the key and focus area for us. शार्क टैंक के एपिसोड एयर होने के बाद आपने बिजनेस में कुछ चेंजेस लेके आए? हाँ, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेके आए हमने। जो पूरे मंथ का टारगेट बनाया था वो हमने 10 दिन में अचीव कर लिया। 30-35 हज़ार से ज़्यादा लोग एक हफ्ते के अंदर ही आ गए थे। बहुत सारे कॉलेजेस इनवाइटिंग कि आप आइए, स्टूडेंट्स को इंस्पायर कीजिए। बहुत सारे लोग हु वुड लाइक टू जॉइन अस एंड हेल्प अस इन आवर मिशन। सो काफ़ी चेंजेस हैं अभी। कोई बुक्स या मूवीज देखते हो या पॉडकास्ट टू लर्न हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप? एनआईटी के टाइम पे बहुत सारी सीरीज देखता था मैं। अभी मैं, यस, आई आई लिसन टू अ लॉट ऑफ बुक्स बाय थ्रू ऑडिबल। सो डिपेंड्स। सो सबसे पहले तो आई थिंक एवरीबडी शुड स्टार्ट फ्रॉम द मॉम टेस्ट। उसमें ये पढ़ाते हैं कि किस तरह से, बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी मम्मी से भी ऐसे क्वेश्चंस पूछो कि वो भी आपको झूठ ना बोल पाए, इन टर्म्स ऑफ कि क्या मम्मी आपको लग रहा है मेरा आइडिया अच्छा है, तो वो बोलेंगी यस, हाँ हाँ बहुत ही बढ़िया है, सबसे अच्छा आइडिया है। बट how you structure the questions, which ultimately will help you to structure the right questions for your customers. So the mom test, उसके बाद negotiation करना है, so never split the difference। एक build करके एक बुक है, वो भी बहुत अच्छी है। The Lean Startup बहुत अच्छी है। The Blue Ocean Strategy बहुत अच्छी बुक है। How Brands Grow काफी अच्छी बुक है। So there are a lot of books, but these are the timeless ones। कोई हैबिट्स जो आपको कीप गोइंग रखते हैं या मोटिवेटेड रखती हैं हर रोज? नहीं, हैबिट तो नहीं है यार ऐसा कुछ। मतलब जब भी मौका मिलता है डू प्ले। जब भी मौका मिलता है आई लाइक टू डांस। तो जब भी फॉर एग्जांपल शादी हो रही होती है तो फुल अच्छे मूड के साथ जाते हैं और वहाँ पे फुल एंजॉय करेंगे। कुछ लोग लड़ाई करेंगे, कुछ लोग कुछ लोग सिर्फ खाना खाने जाएंगे। सो हैव दैट मूड कि ट्राई टू एंजॉय वेयर यू आर, वट एवर यू आर डूइंग, सो दैट विल हेल्प। कभी कभी दोस्तों से मिल लेते हैं तो उससे एकदम रिफ्रेश रिफ्रेश हो जाता है। थोड़ा दिनों में यू गो एंड ट्रैवल विद योर फ्रेंड्स और फैमिली, सो दैट हेल्प्स अ लॉट। क्योंकि फिर उसके बाद फ्रेंड्स फैमिली भी जो है वो अगले 2-3 महीने उस ट्रिप की बात कर रहे होते हैं, राइट, एंड देन यू प्लान अनदर ट्रिप, सो फिर से वैसा ही हो जाता है। सो yeah, do all these things, and I do listen to a lot of books and some podcasts as well. But books say it's all about mindset. My mindset has changed from a newbie to somewhere professional now, thanks to all the books that I've studied and read. कोई इंस्पिरेशंस हैं जिनसे कि वो ऐसे स्टार्टअप करते हैं तो मुझे ऐसे कर, मतलब स्टार्टअप करना सीखते हो किसी इंस्पिरेशन से स्टार्टअप वर्ल्ड में? There are a lot of people who can be inspirations, but not necessarily that I look up to somebody कि उन्होंने ऐसा किया तो मैं भी वैसा ही करूँगा। वैसा नहीं है, but definitely during their podcast I try to understand कि उनका thought process कैसा है। As I said, it's all about mindset, right? You can change the world if you have right mindset. I try to uh, गेट दोज आइडियाज कि यार इन्होंने ऐसा कैसे सोच लिया और जो मैं नहीं सोच सकता था या नहीं सोच पाया हूँ अभी तक, सो क्यों ऐसा हुआ। सो दैट इज द माइंडसेट दैट आई हैव, एंड ट्राई टू कीप एंड पुशिंग माई सेल्फ टू लर्न मोर एंड थिंक लाइक हाउ सक्सेसफुल पीपल डू। कोई लर्निंग्स फ्रॉम दोज इंस्पिरेशंस जो बोलो? लर्निंग्स इन टर्म, नहीं, बुक इंड से है ज़्यादा यार। पॉडकास्ट वगैरह से तो कम है, वो बहुत ही स्पेसिफिक हो जाते हैं। ओके ठीक है, इसने ऐसा किया था, दैट वाज अ गुड आइडिया, ऐसा ऐसा करके, नथिंग मच। परसिस्टेंस ही है एक लर्निंग की। यू हैव टू कीप ट्राइंग, एंड वन डे पीपल विल से कि हाँ अच्छा काम कर रहे हो, तो वैसा। सो परसिस्टेंस डेफिनेटली, ऑल ऑफ देम डू give one solid inspiration, that is for keep trying and fail fast, and persistence is the key. कूल देन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एक एक फाइनल मैसेज जो आप एक फ्रेशर को या फिर एक फाइनल ईयर कॉलेज स्टूडेंट को या फिर एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को एक एडवाइस या मैसेज देना चाहें तो आप दे दीजिए। श्योर। सो देखिए, प्रॉब्लम ही ऐसी चूज कीजिए कि सब लोग मिलके आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश में लगा दें।
क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है वो अपना एक बात करते हैं सिर्फ आइडिया की, कि मेरे पास ये आइडिया, मेरे पास ये आइडिया। आप बात कीजिए प्रॉब्लम की। आपको मेंटर चाहिए ना, आप हुँ, उनके पास जाएंगे जो अपनी लाइफ में उन्होंने वो अचीव कर लिया है कि उनको अभी मनी की एस्पिरेशन भी नहीं है, ना ही आप ऑफर कर सकते हैं। उनके लिए क्या एस्पिरेशन रहेगी कि मीनिंगफुल वर्क में वो कंट्रीब्यूट कर पाए। तो अगर आप उनको बताएंगे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, देर आर मोर चांसेस कि वो तब आएंगे आपके साथ देन सेइंग कि मेरा तो ये आइडिया है जो कि वर्ल्ड का बेस्ट आइडिया है, तो इससे हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। वो हुँ। नहीं आएंगे वैसे, राइट? तो आपको टीममेट्स चाहिए तब भी आप प्रॉब्लम पे बात कीजिए, इन्वेस्टर्स चाहिए तब भी प्रॉब्लम पे बात कीजिए। सो वी शुड शिफ्ट आवर फोकस फ्रॉम आइडिया टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट। दिस इज व्हाट आई फील, एंड then you will see a lot of changes. तो दोस्तों ये था हमारा पॉडकास्ट रवि कौशिक जी के साथ। उनकी स्टोरी और अर्थ की टेक्नोलॉजी से मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैंपस कोड के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।